Hello students of class 9th. Students, as you all know that exercise 7.3 is going on, and in this exercise we have done up to question number 3rd. Today I am going to start from question number 4 onward of exercise 7.3. Exercise 7.3. Question number 4 of this exercise I am going to start. The question number 4 is that BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC एक ट्रायंगल गिवन है in which BE and CF BE and CF are equal altitude. Altitude means 90 का एंगल भी बना रहे हैं और equal means BE equals to CF है. गिवन है एक ट्रायंगल ABC in which BE and CF are two equal altitude. और to prove what we have to prove? प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. This implies we have to prove that AB equals to AC, but we have to use RHS congruency. It is given that use RHS congruency only in this question. So verification of this question I am going to start. For RHS congruency, students, in triangle BEC and BFC we are going to applying the RHS congruency. So in triangle BEC एंड ट्रायंगल BFC दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं. फर्स्टली एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC ईच 90. दोनों के दोनों क्या हैं 90, ये गिवन है. BC इक्वल्स टू BC ये कॉमन है, कॉमन साइड है BC इक्वल्स टू BC. BFC एंड BEC दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है. और थर्ड वन एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है BE इक्वल्स टू CF, ये भी आपको क्या है गिवन है. बाई RHS राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंट रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BFC. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं. दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. When two triangles are congruent, then their corresponding angles as well as corresponding sides are equal. My student, in triangle ABC में angle B equals to angle C. Angle B का opposite side AC and angle C का opposite side AB. It means AC equals to AB. By which theorem? By theorem 7.3 से you will write the statement here, my dear students. Side opposite to equal angle of a triangle are equal. This implies triangle ABC is an isosceles triangle. This is the final result of this question. Okay, now the last question of this exercise I am going to start, the question number 5. The question 5 is that ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. It is given that ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Draw AP perpendicular BC. AP perpendicular draw करना है BC पर. Then to prove angle B equals to angle C. What we have to prove in this question? To prove angle B equals to angle C. Proof I am going to start. Angle B or angle C are the part of these two triangles, so that firstly I am going to congruent these two triangles. So I am going to apply the congruency in these two triangles. In triangle ABP and triangle ACP दोनों में congruency लगाने जा रहे हैं. फर्स्ट एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90. दोनों के दोनों क्या हैं 90 हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड वन AB इक्वल्स टू AC, ये भी गिवन है ट्रायंगल आइसोसेलेस है. AB इक्वल्स टू AC. और थर्ड वन AP इक्वल्स टू AP
ये कॉमन है आपकी, दिस इज अ कॉमन साइड, तो बाई 90, 90 के सामने हाइपोटेनियस और एक साइड आ गई बाई RHS। RHS कॉन्ग्रेंसी से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो एंगल B एंगल C के इक्वल बाई CPCT से। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज of chapter 7 triangles. Exercise 4 you will not complete by the CBSE. It is reduced, it is deleted by the CBSE, so that now today I am going to start the chapter number 8 quadrilaterals. Chapter 8 quadrilaterals I am going to start today. Chapter 8 quadrilaterals. Different types of quadrilateral we know very well. बहुत सारे quadrilaterals होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम, काइट, रेक्टेंगल, rhombus. Firstly, a very important, you know about there are two types of quadrilaterals, concave quadrilaterals and convex quadrilateral. In previous classes you have studied. Article 8.2. Article 8.2. The article is that angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. We know that very well, my dear students. In a quadrilateral, the sum of all angles is equals to 180 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम क्या होता है? 360। गिवन है आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। आइदर यू कैन ज्वाइन एनी वन डायगोनल, आइदर AC और आइदर BD, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। हमने AC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, AC डायगोनल ने एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और एंगल C को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट दिस पार्ट बी 1 एंड दिस एंगल इज 2, दिस इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। ओके, इन एंगल्स को हमने 1 2 3 4 मान लिया और वी आर ऑब्जर्विंग दैट एंगल A की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 प्लस 2 है और एंगल C की वैल्यू क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। प्रूफ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, प्रॉपर्टी का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का एडिशन क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangle. As we all know that the sum of all three angle, the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 180 होता है। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल ABC में एंगल 1, एंगल B और एंगल 3 का सम क्या हो गया? 180। सिमिलरली ACD ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम भी क्या होगा? 180 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD में by the same property angle 2 plus angle D plus angle 4 equals to 180 degree. This is the equation number 2. Adding these two equations, on adding equation 1 and equation 2, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं।
दोनों इक्वेशंस को, तो एंगल 1 प्लस बी प्लस 3, दिस द इक्वेशन 1 की LHS, सिमिलरली इक्वेशन 2 की LHS, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू राइट साइड 180 of equation 1. Similarly we can add the right side of equation 2 also. So here angle 1 plus angle 2 we can adjust, plus angle B as it is. Similarly angle 3 और 4 को भी adjust कर लीजिए, plus angle D is equals to 180 plus 180 360 degree. As we all know that 1 plus 2 equal है A के और 3 plus 4 equal है C के. तो in place of 1 plus 2 we can write angle A plus angle B as it is, 3 plus 4 which is equals to angle C plus angle D as it is equals to 360 degree. This is the result. This is the final property of a quadrilateral. सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ different types of quadrilaterals. Firstly, properties of different types of quadrilaterals. Different type of quadrilaterals, different type of quadrilateral की प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्टली पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. About parallelogram, this is the diagram of the parallelogram. ABCD. My students, in a parallelogram, this is the short symbol to write the parallelogram. In a parallelogram, opposite sides and opposite एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता है और एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के. आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट. मीन्स ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के. मैं इसको लिखने जा रहा हूं, दैट इज ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के. अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी के. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं इसमें, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल्स टू होगा ओ डी के. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड प्रॉपर्टी. Property number 2 for a rectangle. This is the, now I am going to trace the diagram of rectangle. Firstly, A B C D. Here A B C D एक rectangle है. In a rectangle, a rectangle is a parallelogram. Listen carefully. A parallelogram is a rectangle if one angle is 90 degree. अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा. इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसमें भी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. एंगल ए
सी के इक्वल होगा और एंगल बी, लिसन केयरफुली, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही, इसमें ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ना होके इसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ईच 90 डिग्री। सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे 90 होते हैं इसमें, सारे एंगल क्या होते हैं इसमें 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड और बाइसेक्ट करते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। दैट इज अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी डी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा, सारे एंगल 90 होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सबके सब क्या होंगे 90 होंगे। डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी के होगा, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि ओ ए इक्वल टू होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल्स टू होगा ओ डी के। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, rhombus. Now third property I am going to explain, rhombus. Here ABCD is a rhombus. In a rhombus all sides are equal. All sides are equal. Diagonal bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसमें भी एट 90 पे बाइसेक्ट करते हैं इसमें। इन ए रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, किस पर बाइसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं। इट मीन्स दैट इज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होगा, और डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये सारे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए, सारे क्या होंगे ईच 90 डिग्री, सारे 90 होंगे। दिस इज द रोम्बस। फोर्थ, स्क्वायर। स्क्वायर, this is the diagram for a square ABCD. In a square students all sides are equal, each angle is 90 degree, diagonals are equal, diagonal की लेंथ भी क्या होती है इक्वल होती है, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं एट 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इन ए स्क्वायर all sides are equal, each angle is 90 degree, each angle is 90 degree, diagonals are equal, diagonals are equal and bisect each other at 90, that is what is the means, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल्स डी ए,
सारे एंगल 90 होगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी ईच 90। डायगोनल्स इक्वल होंगे, ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। बाइसेक्ट भी करेंगे मीन्स ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल्स टू होगा ओ डी के। और किस पर बाइसेक्ट करेंगे, एट 90 पर, मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए ईच 90 डिग्री। सारे के सारे क्या होंगे, 90 होंगे। These four properties of different types of quadrilateral students you will learn because these are very important. Without these properties we are unable to solve the coming exercise 8.1. Up to that student, thank you, have a good day.